Good evening, guys. Captain Vijay here. Today I'm back with another beautiful content related episode, or you can say a live show. We will talk about crude oil carriers, VLCCs, very large crude oil carriers, the biggest ships in the world, the BAP of all ships. I have done 50,000 deadweight max and 1 lakh 50 bulk carrier. But today we'll be talking about the biggest ships in the planet, VLCCs, ULCCs, and I've got with me uh, VLCC expert. He's my friend. He's done VLCCs as a second mate, and we'll be talking and picking up questions, everything related to VLCC. And he's from Goodwood, so थोड़ा Goodwood के बारे में वेटिंग पीरियड एंड ऑल दैट जो बेसिक डाउट्स रहते कैडेट्स को वो भी कवर करेंगे. बट बेसिकली इट्स अबाउट समबडी हु हैज़ नॉट सीन VLCC लाइक मी. आई एम वेरी एक्साइटेड. VLCC होता क्या है, नेविगेशन कैसे करते, 300-400 मीटर शिप पे, डीप ड्राफ्ट वेसल्स. ऑलराइट, देयर आर कंटेनर शिप्स विच आर एज बिग एज VLCCs, बट उनका ड्राफ्ट डीप ड्राफ्ट नहीं होता. ओके, जब बोलते हैं ना कंस्ट्रेंट बाय ड्राफ्ट, VLCCs की बात होती है. तो इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, कमेंट्स में टैग करो अपने फ्रेंड्स लोग को. गेट योर व्यूवर्स गाइज, टुडे इज VLCC क्लासेस. Let me get my and no other questions. Prince watching me live. All right, no other questions related to GP rating में जॉब चाहिए, डेक क्रेडिट में जॉब चाहिए, उसके लिए सॉरी, दिस सेशन इज नॉट फॉर दैट. No, I'll not be picking up anybody in the live. It will be only me and him. I will definitely be asking questions from the comment section at the end. ठीक है, so let me get him back. Send request. Hi, Captain Vijay. Can you hear me? I can hear you clear एकदम. Okay, clear सुनाई दे रहे. Okay, network. Okay, okay. Darshan, good evening. Thank you for coming live. I can hear you. Okay, guys, it's first time on the live. I can hear you, Darshan. Okay, okay, okay. Thank you. Okay, friends, he is my batchmate. We did our mates together from MASA, one of the best institutes in Mumbai. And उसके बाद से he shifted to VLCCs with Goodwood और अभी तक Goodwood में ही है. So we will ask him about Goodwood as well. Okay, Preeti, can you hear me? And Darshan, बताना मुझे. Friends, if you are not able to hear me or hear Darshan, so let me know. We will get him back again. नहीं यार, एक बार ना जरा देखते हैं. वी कांट हियर. ओके, whom you can't hear? मी और दर्शन. वी कांट हियर. ओके, वी कैन हियर यू. प्रीति, दर्शन का आवाज सुनाई दे रहा है क्या, मेरा दोस्त का? कांट हियर हिम. ओके, दर्शन, हर्षद इज नॉट ऑडिबल. दर्शन, व्हाट? मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ. हाँ, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करना. इट शुड वर्क आफ्टर दैट. Alright, thank you guys. Darshan will be coming back. Darshan can't hear. Okay, thank you. So he will come back, and I'm really sorry I will not be able to pick up any of you for the live session. So उसके लिए we will do it sometime later. But आज let me just ask my questions and the viewers' questions. Okay. Let me get him back again. Okay. Thank you guys. Thank you for coming on live. Let me get it back. Okay. So basically today's topic is VLCCs. Okay. देखा होगा अपने पिक्चर्स में, मूवीज में. Are you able to hear me हाँ now? दर्शन, आई कैन हियर यू गाइस. दर्शन सुनाई दे रहा है आवाज तो प्लीज Are एक्नॉलेज you करो, able देन to वी hear विल me, स्टार्ट Vijay? कन्वर्सेशन. आई कैन हियर यू. Okay.
Let me see if people can hear you as well. Sure. Preeti, Ritesh, हेलो गुरलीन, पढ़ाई वाला टॉपिक चल रहा है भाई. Okay, I believe they can hear you. So Okay. let's start with the first question. Tell us, okay, I know you as my mate's batchmate. ठीक है, that time you were Okay. doing the type 2 or type 3, 50,000 deadweight product tankers Yes. or type 3 Yes. tankers. उसके बाद you went on VLCC as a second mate. Yes. In Goodwood. Yes. Second mate in Goodwood. Now tell me, your first impression जब तू ब्रिज पे गया, उस ब्रिज छोड़ो यार, तूने गैंगवे से जब तूने ज्वाइन करने का शिप देखा, उसके बाद तेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? Okay. Since in my cadetship, I had only done a Panamax tanker and an Aframax tanker in Great Eastern. Then after cadetship, I had shifted to V ships. I was sailing in Gadden Lines in Petchem series, and after that, I did my second. I did my mates, phase one and phase two. And through a friend, I got into Goodwood because I was really tired about the hectic sailing on small ships. So my friend said that okay, VLCCs get like 1.5 month voyage and something like that. So I was really interested into VLCCs. So I just through him I contacted Goodwood, and luckily on my first attempt I cleared my interview and everything in Goodwood. And within within my interview I joined within 5 days. I did my BTRM and I joined within 5 days in Goodwood. My first ship was a VLCC, and I've been sailing on VLCC after that. So I joined the vessel somewhere in the evening. I was not able to see the entire vessel, frankly speaking. And then I went to I did my cargo watch. I did my something with my off signer, did my cargo watch, and then went on onto the bridge. And when I saw the vessel, it was so huge. I thought the vessel was somewhere around midship. The midship lights, and I saw a main mast right in front. I thought, oh my god, that's a huge ship. And to navigate such a huge ship is a really difficult task. So my first thing was getting the ship safely out of the, safely planning the passage plan out of the port and routing. I joined the vessel in Korea, and we are supposed to come to Singapore for bunkering. So my main task was planning my first route from Korea to Singapore, and we were going on a super slow steam. That is a normal practice on VLCCs. We normally go on super slow steaming. So when I saw the vessel, oh my god, I said, oh my god, it is a very, very big ship actually as compared to, because I was on a Petchem 183 meters, suddenly switching over to a VLCC 333 meters. It's a big task, really, really big task. And navigation is little bit different on a VLCC than compared to a smaller tanker. Okay. Okay. Tell me, did the captain ने पूछा होगा ना, have you done VLCC? तूने बोला no. फिर उसके बाद वॉच पे छोड़ा कैसे तेरे को? अभी वो छोड़ दिया था, लाइसेंस था, काफी एक्सपीरियंस था, मेट लाइसेंस था, तो छोड़ दिया एक्चुअली. And But after Korea, we come down through that South Taiwan China Sea, Straits, and fishing traffic Taiwan is Strait. lot over there. Yes, VLCC, we do have to alter for all the viewers who are watching. The fishing boats will not move. We have to alter like a normal ship to avoid them and keep clear as suggested in our ROR rules. Okay. Okay. So you guys do alter. Okay. Now tell me, VLCCs, huge ships. ठीक है, almost 150, 2 lakh deadweight. तो जब alter करते हो, container ships, थोड़ा भी घुमाना चालू किया तो घूमना चालू हो जाता है. Tankers, VL, थोड़ा टाइम लगता है. But VLCCs, I have heard that you give a rudder, हिलता नहीं है. लेकिन जब हिलता है तो it doesn't stop. So तो रुकता नहीं है, navigation रुकता नहीं है. Yes. रुकता नहीं है. Okay, so on that, I want to say something. In ballast condition, it is like a normal tanker. It does work with the really what you say, the maneuvering is very nice. But in loaded condition, okay, 10 degrees rudder wouldn't move the vessel. So you have to give say 15 degree rudder, and you have to watch the load on the engine also, because the moment you give hard rudder, there's load on the engines, and then we get calls on the bridge, why are you altering so much? And the master, nowadays there is like this repeater in the master's cabin as well as everywhere. So everybody is watching you on the bridge what you're doing. So the moment you alter more than say like
give the rudder angle more than 15 degrees, like people will ask you why giving so much of rudder angle. But that much of rudder angle is required to actually start moving the ship, because the moment she starts turning, you have to give a counter rudder, and to stop them, you have to give at least 20 degrees on the other side, depending on the circumstances, yes. But एक बार घूमना चालू होता है तो it wouldn't stop. That is a normal. What you heard is actually right. In a loaded condition, it is yes very difficult to maneuver a VLCC. Yes. All right. Okay. Typical loaded draft and typical ballast draft, if you remember. Okay. So ballast draft, forward is 8.5, aft is 11 meters, and loaded. It depends actually. My last vessel summer draft, not last vessel actually. Yeah, last vessel summer draft was DHT Raven actually. My colleagues are live on that. So it is 22.3 meters. So it's quite a lot. Summer draft is 22.3. 22.3. Okay. 22.3. Okay. Mine 45,000 deadweight ka summer draft is 11.7. So yes, it is little. Only thing what we fear the most during navigation is like if you don't have a proper lookout and small target pops up anywhere, then it is a big like small fishing boat, wooden boats. They are not directly detectable on, not that much detectable on radar. But in Singapore Straits, loaded VLCCs, and you know the fishing boat, they do not move. In deep draft, or what do you say? In deep draft channel, they are just waiting and fishing there. And even if you give the sound signal, they do not move. So that is a little challenge while transiting Singapore Straits. All right. Great. Now, just a brief में बता देना VLCCs में, if you remember any types of crude oils that you have loaded ना, बहुत सारे types of crude oil रहते हैं, तो एक general idea. Okay. Normally we do not we carry SAR crude oil. Okay. That is SAR because it has H2S. Yes, it has H2S content, and it is very much profitable for the customer who is buying it. Because the tar content and everything is less in that, and mostly we load in Gulf and we discharge in China, or we go to USA. Mostly the route of a VLCC is mostly load in Gulf, go to Far East, or load in Gulf and go via Cape to USA. That is basically on the near Corpus Christi or Houston, mostly Houston. Houston, Gulf, okay. Gulf of Mexico. Yes, US Gulf of Mexico. Alright, so lamba sailing matlab. Actually, ballast to ballast voyage is 1.5 months. So that is a good thing on a VLCC. So tell me, 4 months के contract में कितना loading, कितना discharging? Okay, Frank. Last vessel, DHT Raven, I had done that. Okay, I joined the vessel in South. I joined the vessel in UK during the pandemic. Loaded the vessel back-to-back 3 STS operations. Then discharged there. We loaded in Italy. We were there at anchor for 1 month. And then I signed off in Cape Town when we were supposed to. So only 1 loading and 1 discharging I did. Or basically 2 loading and 1 discharging. 2 loading, 1 discharging. 1 discharging, yes. Complete loading and 1 discharging complete, yes. All right. So, anyways, we'll not talk about. In this session, it's not the first. We'll not be talking about the the VL bulk carriers, very large bulk carriers. Okay, size wise they are almost the same, but this is more of a tanker related talks. So next, just tell us bridge आपने बात किया, थोड़ा आगे और पूछते हैं. CCR, tell me CCR में what all things you have? Like we have Framos, ठीक है, pump room of course. So tell us about pump room में क्या होता है जो cargo को pump out करता है, and loading rates and inert gas, just a rough idea. Okay, so on a VLCC, typically we have conventional type of pumps, centrifugal pumps, 3 pumps, steam powered, steam driven, and rate normally is between 5,500 cubics to 5,000 cubics. And we have 2 cargo eductors mostly, capacity roughly around 350 cubics per hour, 1 cargo eductor.
and we have stripper pump. The capacity is around 200 cubics. Then talking about ballast pump, we have two ballast pump. Can be steam driven, can be electric, both, or one steam driven and one electric. Capacity is around 3000 cubics. We have two ballast reductors, and the capacity is, I think, 150, roughly around 150 cubics for ballast reductors. And yeah, that's it. That's what we have on board. And we have we do have an AUS system for our what do you say, centrifugal pumps, because those are non-priming pumps, and we do need to remove the air when it comes to the system. So we do have an AUS system, automatic unloading system on board, which helps to for a better stripping, better stripping during the later part of discharge. It is not used on the starting part. It is basically used when the tanks are about 25% full. So because of that, the vapors are generated in the separator, and we need to take out the vapors from the separator. So we are using AUS system during that time. That is automatic unloading system. Okay. All right. I think we missed अपना ना VLCC के बहुत सारे types होते हैं ना, VLCC, Aframax, तो उसका जरा range बता देना. I think dead weight में भी उनको समझेगा नहीं, but lengthwise. Okay. Lengthwise पता. Lengthwise. Okay, chemical tankers you have to tell, because I think 150, 120, starting from 120 meters. Yeah, see, chemical tankers, मेरा ships का length जो मैंने करा है 183 meters and dead weight 50,000. और अभी जो नए ऑयल केमिकल टैंकर्स आ गए हमारे शिप पे ना, वो 220, 230 meters and 120,000 dead weight. तो you start with 50,000 से कैसा अपना crude oil distributed है? Okay, I will briefly tell you about the length, what I know, because dead weight का इतना अभी याद नहीं है मुझे. So basically 183 meters is a Panamax tanker, that is 180 meters. Okay, network issues, his side, my side, I don't know. Shorelive, yes, it's in my list. Shorelive वैसे ही उनको मिलता नहीं है. They discharge load at SDMs, I've seen. Yeah, Darshan, you're back. Yeah, I can hear you. सुनाई दे रहा है. Network. I can hear you. सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा वीडियो ब्लरी है. ओके, दर्शन सुनना, तेरा ये नेटवर्क को जरा एक बार चेक करेगा. मे बी वाईफाई एक बार, या मे बी मोबाइल डेटा थोड़ा ब्लरी आ रहा है. नेटवर्क इश्यूज है आई बिलीव तेरे साइड. You can't hear anyone. Okay, again you're hearing issues, so let me just disconnect and reconnect here. Okay guys, thank you for informing. Video was blurry. सुनाई दे रहा था मुझे. गैस कैरियर एक्सपर्ट, यस, मेरा एक फ्रेंड गोवा में पिकनिक मना रहा है. ही इज डन LNG, ठीक है, फर्स्ट ऑफिसर, नाउ ही इज चीफ ऑफिसर. दर्शन सर इज योर चीफ ऑफिसर? यस, ही वाज माय बैचमेट. हमने मेट्स साथ में करा है. Network problem, yes, I get it. Okay, I hope better. Okay, so VLCC is का classification. Okay, so VLCCs are normally 330 meters, and followed by ULCCs. Yeah, and followed by ULCCs, those are 360 meters. Okay, all right.
मैं इधर मैंने नेट से डेड वेट का निकाल के रखा है तो VLCCs करेक्ट में नेट पे हाउ इट इज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन VLCCs बोलते हैं 1,60,000 से 3,19,99 एंड थ्री Yes, ट्वेंटी थाउजेंड डेड वेट ऑनवर्ड्स इज अपना ULCCs. ULCC. Correct, correct. ओके सो तूने कौन सा लाइक विच शिप यू हैव डन द बिगेस्ट नहीं, मैंने सारे 320 किए. 320 सो Yes, टेक्निकली all 320. ULCCs. Technically VLCC 3,20,000 is the deadweight for the maximum is the VLCC. 3,20,001 is a ULCC. ओके अनदर क्वेश्चन तो जब यू सेड ना तूने CCR में यू वेंट फॉर योर कार्गो वॉचेस एंड coming from 3,000 cubics per hour on that is the maximum on type 2 and the अपना type 3 Yes, 3,000 yes. 3,600 बट उतना कभी करते नहीं पार्सल रहता है तो वी कम टू 1,000 1,500 अचानक से VLCCs पे लोडिंग रेट्स एक तो एग्जांपल बताओ लोडिंग रेट्स कितना होता है एंड सडनली तू गया तो पर आवर में यू लोडिंग रेट्स देखे एंड प्लस यू डील इन बैरल्स जो हम लोग यूज टू नहीं है वी ऑल टॉक ओनली इन क्यूबिक्स मेट्रिक टन्स तो हाउ वाज Yes. योर दिस थिंग एक्सपीरियंस देयर Okay, so firstly, VLCC normally load in, the Gulf areas, and the most common port anybody who will go on a tanker, they have to visit this port called as Saudi Arabia. So you have to go in that country at least once in your lifetime, and it is the fastest loading port in the world. I guess so. That is what I have done. So it is say about 1,20,000 barrels. That is 20,000 cubics an hour. So a normal 20,000 VLCC loads, yes, normally VLCC loads 2 million barrels. That is 20 lakh barrels. And so imagine within say 18 hours, a full VLCC can be loaded if it is an homogeneous cargo. अच्छा We you have have seen parcels the also manifest. Nowadays VLCC is a parcel tanker. To be frank, अच्छा we load 4 parcels actually on single wall okay segregation. okay So normally we do load 4 parcels. Arabian Light, mostly it is Saudi में 2 parcel we load, and then we go to say Al Ruwais, and then we go to say Oman, and when we load 1 parcel there, and all discharge in Singapore. So now that is a little hectic. So only 15 days voyage, but it is still okay. okay you did DST ना DST पे ये होता है ना No, a DNS वो जो अपना from शिप Great Eastern. वीडियो नहीं 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 no, नॉट दैट यार अपना शिप Okay. यूर ऑन द DST कैरियर ना DHT तूने भेजा ना मेरे को DHT, yes. वीडियो I am, yes. On DHT आई tanker, बिलीव yes. those are one of the very good principles no good ships they have Yes. Goodwood has actually now 3 to 4 principals okay dealing in tankers, and we are also taking over Capesize bulk carriers. That is what I have known from my friends. We do have container vessels. We do have now Capesize bulk carriers. We have gas tankers as well, and we also have Aframax, Suezmax, and VLCCs. okay okay एक क्वेश्चन बीच में आया था आई वाज थिंकिंग लास्ट बट शोरलीफ पैसे पूरे बचते हैं कि शोरलीफ जाने को मिलता है मैंने अब तक तो कभी शोरलीव एक्सपीरियंस नहीं की है ऑन अ okay VLCC. okay Frank, Okay, guys, he has done close to 40 months. Rank experience has made, and very soon he will be getting command on VLCC, and he already has his master license. So he's saying, though, so I'm not able to believe. तूने almost 36 months sign सोलिव on, नहीं sign गया. off. सिर्फ sign on and sign off. ओके गाइस ब्रेकिंग न्यूज जिसको बाकी जो लाइव सेशन सुन के है वो पता है ना शोर जाने को मिलता है कंटेनर्स पे लाइव सेट है मजा लाइफ है कंटेनर्स पे बल्क एरियर्स पे सुन लो VLCCs पे अगर नंबर लगा तो डेफिनेटली रिफ्यूज मत करो क्योंकि शिप्स मिल रहा नहीं है बट शोर भूल जाओ तो और नहीं, एंटरटेनमेंट क्या है फिर we do not touch ports. We do not touch ports actually. वाई So actually the problem is because of the draft restriction, normally we load in Saudi Arabia, that is an SBM, followed by we do discharging in China, that is at the berth, and at the berth we have wetting inspection. So and due to the COVID situation, and not also because of COVID, if you have a wetting inspection,
you're not allowed to go outside because anybody will say first finish the betting and then you go outside. So Okay. mostly it is not possible for a show leave. If you are very lucky, actually very lucky, you do get sometimes we actually load some cargo in Brazil, Angra do Reis, and some cargo in USA. But you know USA, it is always we do STS operations over there. So getting shore leave on a VLCC is a big thing. I don't think so. I have been on a shore leave for the past 7 to 8 years. It is only sign on and sign off for a mate at least. That's what I have experienced. Okay. Okay, as per our great politician, Khatam, Tata, goodbye. Life. बट ठीक है ना, एटलीस्ट यार पूरे पैसे बचा ले. ओके, टेल मी एंटरटेनमेंट क्या है फिर? लाइक बेसिक शो लिव नहीं है, देन व्हाट? Okay, for entertainment, I will share some pictures if you can post on your story handle. You post on your Instagram, I will share it on my story, no problem. So Mahi Sure, Prasad, okay. your question उसी का था. भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे, तो एक शो लिव उसी का था. कैडेट में उसको शो लिव का चिंता था, तो चीफ मेट को शो लिव नहीं मिल रहा, तो कैडेट तो भूल जा. अचीवमेंट नहीं किसी को नहीं मिलता. अचीवमेंट किसी को नहीं मिलता. बट टेल मी यार, अगर एसडीएम पे भी है सपोज, तो एसडीएम पे ड्यूटी हाउस से 616 पर कर रहे हैं, बट इट इज क्वाइट फार ना, वो बोट अरेंज नहीं हो पाती क्या शो लिव के लिए? 30 नॉटिकल माइल्स दूर कौन जाएगा? थाईलैंड में कभी कभी नहीं. लक मिल जाता है क्योंकि इट इज नियर बाय. थाईलैंड में कभी कभी लग जाता है लक, पर मैंने अब तक थाईलैंड में डिस्चार्ज नहीं किया एज अ मेट. मैंने नॉर्मली चाइना ही डिस्चार्ज करता हूँ. मैं जिस जहाज पे आता हूँ, चाइना या सिंगापुर, दो में से एक टर्मिनल है जहाँ पे वीएलसीसी डिस्चार्ज करता है, वहां पे शोर लीव अलाउड ही नहीं है. बाहर के रिप्रेजेंटेटिव आना अलाउड नहीं है कंपनी के, तो शोर लीव तो बहुत दूर की बात है. बहुत दूर. शेवरॉन का टर्मिनल है, तो नॉट अलाउड. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो शो लिव ओके. अपना कंपनी का थोड़ा सा वेटिंग पीरियड कितना है? Many guys are Okay, I will concerned. explain to the guys who are waiting right now for joining. Uh, this is what I have known, what I've experienced, and what I've been seeing on board. हमारा थोड़ा what do you say, the total number of crew on board are little bit higher because it is a bigger ship and we need to do a lot of maintenance because वो खत्म करते करते आगे से पीछे chipping, आगे रस्ताना चालू हो जाता है वापस. So basically we have a crew of around about 28 to 30. We do have cadets. Before we used to have 2 cadets. Now we have 1 cadet. On deck side, I'm talking about. Engine side, we have 1 cadet. We have an ETO plus a trainee ETO on older ships. Older ships मतलब जहाँ पे ज़्यादा चाहिए, मतलब helping hand चाहिए, तो वहाँ पे trainee ETO भी है. And also, what do you say? For the guys who have the certificate of competency, who are trying to apply to Goodwood, I must say this. Now we have a different kind of the rank in Goodwood. Okay, so first you will be joining as a junior officer, followed by if you do a get a good appraisal and everything. So after 6 to 8 months, you'll get promoted to an additional 4th officer, then 4th officer. Then additional 3rd officer, and then 2nd officer, and then additional. Now there is one more rank, additional 2nd officer. ये क्या, एक बार जरा वापस रिपीट करेगा? मैं भी कंफ्यूज हो गया. Junior officer or there is junior officer or 4th officer, Okay. whatever he is joining. So Okay, 4th officer. junior or 4th. Yes, we have 4th officer. ओके. बट मास्टर सीओसी में उसको सीडीसी में स्टैम्प 3rd ऑफिसर पे मिलेगा ना? नहीं. He will get 4th officer. Oh, okay. He'll get 4th officer. So first we have junior or 4th, followed by Okay. additional 3rd officer, followed by additional 3rd officer, followed by 3rd officer, followed by additional 2nd officer, followed by first mate, first officer, followed by chief officer, followed by additional master, and then master. इतना हो एक्चुअली में होता है कि some ships have, some ships don't have? No. We actually have an extra officer on board. So mate has to keep 1 watch in a day. And if you are doing a coastal area, then mate has to keep both the watches. Yes, sir. All right.
Okay, so that means you must have in your 36 months watches hardly करे होंगे कि ओपन सी में I think नहीं not नहीं, needed no because already officer है. नो 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 नो, पहले अभी ये नया आया है, क्या बोलते हैं, ये सब रैंक नए हैं, तो अभी मुझे थोड़ा एक वॉच का ये मिल रहा है, लीवे मिल रहा है। सिंस 2017 2018 आई गेस ये रैंक्स आए हैं। और अभी तो वी हैव सी मोस्ट ऑफ द, क्या बोलते हैं, वहां से गल्फ से निकला तो कोस्टल है, सिर्फ अपने को क्या बोलते हैं श्रीलंका कोस्ट तक हमें क्या बोलता है 1 2 4 दिन का वो पैच मिलता है। एंड देन सिंगापुर जा रहे हैं तो फिर अगेन 2 दिन के बाद प्रेशर टेस्टिंग करना है, तो काफी कम टाइम मिलता है। क्या बोलते हैं, मतलब ऑफ का टाइम काफी कम मिलता है। नॉर्मल वॉचेज ही ऐसे चालू रहती है, बट इफ यू आर डूइंग अ गुड रूट लाइक इफ यू आर गोइंग टू यूएस, देन इट इज अ बेटर लाइफ फॉर मेट, बिकॉज वो नीचे जाते वक्त क्या बोलते हैं केप टाउन जाते वक्त यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ, गोइंग अप टू फ्रॉम केप टाउन टूवर्ड्स ब्राजील वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो अभी फिलहाल के लिए ऐसा है कि वी हैव टू कीप वन वॉच एज अ मेट, कंपनी रूल। Okay, okay, but I would still say that's still okay at least. But morning दो 4 नहीं o'clock करने उठना पड़ते पड़ता है. दैट डिपेंड्स। अभी कंपनी का प्रोसीजर है कि मेट हैज टू कीप द इवनिंग वॉच सो दैट प्रॉपर टूल बॉक्स, हमारा टूल बॉक्स ब्रिज पे अलाउड नहीं है गुडवुड में। सो Okay, सो वी हैव टू डू द टूल बॉक्स इन द सीसीआर। सो मॉर्निंग वॉच प्रेफरेबल नहीं होता, किसी को कोई भी मेट को दिया तो शाम की वॉच रखते हैं नॉर्मली मेट। got it, got it. All right. Salary difference क्या है फिर इनका? Approximate fourth officer फिर additional third officer. Okay, Any so this idea? I have a rough idea. Okay, I think 1700 for junior officer, followed by 2200 for additional third. When you become third officer is 3200. Okay, Additional second is 3900 somewhere, okay, okay. and second officer is of course 4200 something. And राजमहल ठीक है. फर्स्ट ऑफिसर का तो क्या बोलते हैं अपना बहुत कम है एक्चुअली, फर्स्ट ऑफिसर का सबसे कम है। Okay, फर्स्ट okay. ऑफिसर का 6600 है। But this was not there, no, when you became second mate to mate. नहीं नहीं, मेरे लिए मेरे वक्त नहीं था ये। दिस इज तो बच कम गया बिकॉज फिर. वी हैव एब्जॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ कैडेट्स, वी हैव एब्जॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ कैडेट्स हियर, दैट इज व्हाई। Okay, okay. बिफोर वी यूज्ड टू माही हैव 2 का कैडेट्स। माही का क्वेश्चन है. कैडेट का $350 कैडेट का सैलरी. 350 350 350। 400 is standard on most of the ships, guys. Cadet salary, so not much difference. And do not focus on your cadet salary. Cadet salary के लिए थोड़ी ना मच्छी ने ज्वाइन किए. वो तो क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट व्हाट यू से, दैट इज कंपनीज का, इट इज पेइंग यू फॉर लर्निंग राइट नाउ। कैडेट का सैलरी It's नहीं called होता है एक्चुअली stipend. स्टार्टिंग में। It's not salary. It's इट्स stipend स्टाइपेंड, बोलते यस हैं उसको. इट्स स्टाइपेंड, यस So इट इज स्टाइपेंड। सो okay, few questions. So somebody suppose अभी तो mate है and now you have so many ranks. Fourth. Okay, ETO का approximate wages कितना होता है? Somebody is asking. In my opinion, okay, for 4 to 6 7 4 to 5 6 4 7 to के 6 रेंज में रहता है. it is around, if he is experienced, it is I think around 6000 what I remember correctly। 6,000. All right. So that's about ETO wages on a VLCC. Next, promotion wise, ठीक है. Like तेरे टाइम पे तो ये सब था नहीं अभी, but somebody अभी नए कैडेट्स है जो अभी देख रहे हैं, तो कैडेट्स में सीओसी इतना मुश्किल से निकालने के बाद वो जाएंगे एज अ फोर्थ ऑफिसर, जो मैंने कभी सुना भी नहीं. जूनियर ऑफिसर तो चलो ठीक है, अंडरस्टूड है. तो प्रमोशन वाइज बता देना कितना अप्रोक्सीमेट कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे टू बिकम थर्ड ऑफिसर, फिर थर्ड ऑफिसर से एडिशनल से सेकंड से फर्स्ट से चीफ. ओके, सो हमारे कंपनी का रिक्वायरमेंट बोलता हूँ मैं। सो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट बिकॉज वीएलसीसी है, इसलिए वो फोर्थ ऑफिसर से वो उनको वो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमारे जो भी मैं हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं दे कैन वर्क ऑन अ वीएलसीसी बिकॉज इट इज अ बिगर शिप ऑफ कोर्स। So basically navigation wise their main duty is navigation and एक LSA और FFA you have to do. That will be decided on board, जो mate decide करेगा कि mate और master decide करेगा कि इनको क्या करना है, कैसे condition में है, how the guy is working on board. So basically जो fourth officer आता है वो एक contract करता है, एक contract of approximately 6 to 7 months, followed by he will do 2 contracts of additional third to become third officer. So 18 months basically to become a third officer. वहां से second mate बनने के लिए 3 contract at least. तो
तो 18 महीना और करना पड़ता है उसके बाद। तो 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, तो यू बिकम सेकंड मेट आफ्टर दैट। And second mate to mate is almost second mate to you have to do at least अभी फिलहाल के सिनेरियो में is Present, 24 to 30 months, 24 to 30 24 to months 30 months as second mate. as second officer, हाँ. yes. ओके, एक जमाने में टोटल सी टाइम होता था ना, थर्ड मेट और सेकंड मेट का मिला के 30 मंथ्स मेट बन जाते थे। yes. अभी मैं भी वैसे ही हूँ, क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट किए है थर्ड ऑफिसर, 5 कॉन्ट्रैक्ट सेकंड ऑफिसर एंड ऑलमोस्ट अभी 9 कॉन्ट्रैक्ट एज मेट हो गए मेरे। 9 कॉन्ट्रैक्ट्स, या ओके, बट ऑल ऑन वीएलसीसीज। बट सही है, इट्स मैं हमेशा वीएलसीसीज को देखता था ना, और नेविगेशन मेरा फेवरेट वो है थिंग ऑन बोर्ड। नेविगेशन में मजा आता है, तो वही मैं देखता था। हम तो चलो घुमा लेते शिप को बीच में से, मैं तो घुसा देता था फिशिंग। ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन, फिशिंग का एक बड़ा सा पैच है, ठीक है, साउथ चाइना सी या कहीं पे भी, और बीच में हाँ एक्चुअली हाँ, जगह रहता है। अभी हम लोग का साइज ऑफ शिप पे नहीं अभी जाते, बीच हम नहीं जाते। में हम घुसा देते हैं, मैं घुसा देता हूँ, फिर बीच में जिगजैग मार के। कंटेनर पे तो आंख बंद करके कर लेता था, टैंकर पे भी बीच में घुसा देते थे, ठीक है, सेफली नेविगेट। वीएलसीसी क्या करते हो? नहीं, हम लोग बाहर जाते पूरा, हम लोग रूट के बाहर जाते पूरा। वी गो एटलीस्ट, मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया है, वी हैव गॉन एटलीस्ट 8 miles ऑफ रूट। नया पैसेज टाइम बनाना पड़ा सेकंड मेट को उसके लिए, कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैफिक था वहां पे। जब हम लोग ताइवान कोस्ट से ऊपर आए थे, वी आर गोइंग टूवर्ड्स यांताई मतलब वो येलो सी में है ऑलमोस्ट। तो वहां जाते वक्त बहुत ट्रैफिक था, तो वी हैव टू ऑल्टर, बिकॉज वो अंदर से नहीं जा सकते। और फिर मास्टर सोएगा कैसे? मतलब ठीक है, सेकंड मेट है ऑफ कोर्स, बट वो सीपीए अभी यू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, अ लिटिल बिट फक अप एंड यू गेट ऑल द थिंग्स ऑन मास्टर ऑन द ड्यूटी ऑफिसर। तो वो 1 माइल का सीपीए का, अभी वीएलसीसी पे 1 माइल का सीपीए रिक्वायरमेंट विद द साउथ चाइना सी, यू नो व्हाट इज गोना नॉट हैपन, पॉसिबल। राइट? सो यस, तो थोड़ा बहुत दिक्कत साउथ चाइना सी में ज्यादा होती है एंड सिंगापुर स्ट्रेट्स में। बाकी तो व्हेन वी गो टू यूके इट इज वेरी रिस्पेक्टेड एक्चुअली। वीएलसीसी आ रहा है तो बोलते हैं कि भाई साइड हट जाओ, अभी वीएलसीसी आ रहा है, अभी कोई इम्पीड नहीं करेगा इसका सेफ पैसेज। और डोवर कोस्ट गार्ड एंड एवरीथिंग आर वेरी स्ट्रिक्ट। जो जहाज बीच में आता है फाइन पड़ता है उस पर, मैंने देखा हुआ है ये। But only when you're passing through that deep water route, ना? डोवर को मतलब हम लोग लोड करके रॉटरडैम में भी डिस्चार्ज करते हैं कभी कभी। तो व्हेन वी आर गोइंग इन लोडेड नो इन इंग्लिश चैनल, सो फ्रॉम दिस फ्रांस से लेके वहां तक आगे तक, जहाँ पे क्या बोलते हैं रॉटरडैम का पायलट्स है, मास पायलट्स तक, वहां तक पूरा इंग्लिश चैनल डोवर कोस्ट गार्ड सपोर्ट्स अस प्रॉपर्ली। कोई यॉट कोई नहीं बीच में आएगा। बट सिंगापुर स्टेट्स में नोबडी गिव्स एनीथिंग। मतलब वीएलसीसी चल हट बहुत जाते हैं यहाँ से डेली। यू नो द काइंड ऑफ ट्रैफिक इन सिंगापुर यार। या अभी आई एम जॉइनिंग सिंगापुर ओनली। ये सबसे बड़ी न्यूसेंस है कंटेनर्स वाले, मैंने देखा उनको, कंटेनर्स और कार कैरियर्स। कोई स्पीड कंट्रोल एकदम नहीं भगा है। के लेके जाते हैं बाजू एकदम भगा के बाजू से लेके जाते हैं। हाँ, हाँ, थोड़ा मतलब हमें या डीप वाटर रूट दिया है थोड़ा, तो हमें थोड़ा ये रहता है कि हाँ कि हम लोग डीप वाटर से जाएंगे। बट व्हेन यू अप्रोच रेकॉन डेल्टा और उसके आगे वो बातू बरंती एंड बफेलो रॉक, you know it is very narrow for everything, and you saw the 2 or 3 container ships getting grounded on Batu Baranti right now. It is only like say a year old story. 2 container vessels उस पे ही चढ़ गया। अरे सामने रॉक है, देखो तो सही, क्या कर रहे तुम? उतने बाजू से क्यों जाना है तुमको? ठीक है। देख, जस्ट फॉर ऑन अ लाइटर नोट, फिशिंग बोट्स वैसे भी अगर वो देख रहा है, फिशिंग कर रहा है, ठीक है, और उनको पता है कि अपना मर्चेंट शिप्स को ऑल्टर करना ही पड़ता है, बट उसने देखा इतना बड़ा 60 मीटर का बीम सामने से आ रहा है, ऑल्टर ही नहीं कर रहा है, भाई ने ठान लिया आज ऑल्टर नहीं करेगा, वो तो वैसे ही वेव से साइड में हो जाएगा। A funny incident I remember. Okay, I was on the bridge. I was helping the master in mooring operation in port called of Qingdao in China. So we cleared the deep water route. We were there at anchorage. We cleared the deep water route on the tide. We were supposed to berth on the port, and we were going at say 8 knots. There was a fishing vessel which overtook us from our port side and crossed our bow and went on the starboard side. Then the pilot said, we cannot control these guys because we don't have the number also, because they have a pseudo AS now, right now.
for the fishing. You also know that they have a pseudo AIS के फिशिंग के VAIS बेसिकली बोलते हैं ना, वो नेट पे डाल के रखते हैं और उन लोग छोड़ देते हैं, तो उनको इतना Yeah, ट्रैक करने में exactly. बहुत प्रॉब्लम हो Correct. जाता है. Correct. अभी बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू साउथ चाइना सी, सब VAIS डाल के रखते हैं, वो नेट पे भी AIS रहता है, तो ऐसे ओके, रेडार पे ये देखेगा मैं और एक AIS ऑन बेसिक, हाँ एक मिनट, हाँ ये मैं इनको आइडिया नहीं रहेगा. ओके, एआईएस बेसिकली इन लोग ने कॉलेज में पढ़ा होगा कि वो मोर देन 500 जीटीए इन चिप्स पे रहता है. बट साउथ चाइना सी वाले बहुत पैसा रहता है उनके पास. जो इंडिया में फिशिंग बॉयज है ना, वो कभी एक लाइट जलती रहती है, वो कभी लाइट जलती भी नहीं है. बट साउथ चाइना सी में ऑल द फिशिंग बोट्स के पास एआईएस रहता है, विच इज गुड. लाइक हमको पता है कि एआईएस बाय डिफॉल्ट टारगेट डिटेक्ट नहीं करेगा रेडार पे, बट द एआईएस विल बी देयर. बट व्हाट हैपेंस इज इवन इन सिंगापुर एंड आई हैव सीन इन साउथ चाइना सी तो है लॉट्स ऑफ एआईएस टारगेट्स ऑन द रेडार, और देख के ना ड्यूटी ऑफिसर तो उधर ही उसकी फट जाती है डर जाता कि है. बॉस हाँ, क्या होएगा. बट बट एक्चुअली देन यू कुछ नहीं सी कि होता है. एक्चुअली में देयर इज नथिंग देयर. हार्डली कोई फिशिंग बॉयज होगा, बट दिस गाइज हैव पुट सूडो एआईएस जस्ट टू मेक श्योर दैट द शिप्स डोंट पास ओवर इट. तो वो थोड़ा ट्रिकी रहता है बिकॉज ऑफ कोर्स तब एक्चुअली के तभी तो नेविगेशन टेस्ट होती है तुम्हारी, तुम कैसे नेविगेट कर रहे हो. अगर तुम रेडार पे एआईएस ऑन रख दिया तो मतलब समझ लो कि क्या होने वाला है आगे, तो यू कैन नॉट पास थ्रू दैट. एंड एक्डिस पे तो एआईएस ऑन रहता ही है, तो द मोमेंट यू सी एनीबडी लुकिंग एट एक्डिस एंड टेकिंग एक्शन एज पर दैट, तो थोड़ा वो हमें ये होता है कि भाई ये एक्डिस के ऊपर से एक्शन ले रहा है. दैट इज रॉन्ग एक्चुअली. यू हैव अ रेडार फॉर ओके, दैट एंड यू हैव वेरी एन आरपा इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट. दैट. वेरी You have इंपॉर्टेंट an ARPA for पॉइंट. that. बच्चा लोग जो पढ़ रहे हैं एज पर वीएलसीसी पे जाओगे तो दिस इज व्हाट फर्स्ट टाइम कैडेट एंड जो एडिशनल थर्ड ऑफिसर्स, फोर्थ ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर, सीनियर मास्टर्स ऐसे ये देखेंगे कि अगर एक्डिस पे देख के नेविगेट कर रहा है तो वहां पे उनको पता चल जाएगा बंदे ने कहाँ से प्रीसी किया है, बंदे ने क्या कैडेटशिप करा हुआ है. ऑफ कोर्स हमारे वक्त ज्यादा एक्डिस था नहीं. ऑफ कोर्स व्हेन यू वर सेलिंग एंड मतलब वी वर कैडेट्स, तो एक्डिस तो था ही नहीं, हमें चार्ट से ही करना पड़ता था, तो उस पे तो बॉयज ऐसे दिखते नहीं थे जैसे हमें दिख रहा है. somebody is asking me this question a lot of time, equator crossing. I also we saw do. that. Okay, it's We not do. related to We do. VLCC. That is we applicable on do. livestock carrier. We do what do you say, equator crossing, but we do not nowadays ragging and do. See, we ask the person, okay, if you are comfortable with it, then we do the ceremony. If he is not comfortable, then of course वो खाली फुकट बाद में रोएगा. And he should take it in the right spirit. हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, हमारा तो ऐसे ही बुला के सब हो जाता था. If you remember, that thing were very, what do you say, different that time. Okay. What is the One more amount of question. minimum draft? Oh no, one question. VLCC. Navigation wise मैं पूछ रहा हूँ कि whenever you, I mean, Singapore Straits में maneuvering RPM पे चलते हो ना? Maneuvering RPM and all that congested waters. No, not all the time. Okay, so so if you're doing eastbound transit towards Taiwan, first हमारे engines short notice पे रहते हैं from OFB 1 fathom bank till deep water route cross करने के बाद तक. उसके बाद we get a stretch of say 6 to 8 hours. एंड उसके बाद हमारा ब्रदर्स आता है, फिर वो चालू हो जाता है. फिर उसके बाद देयर इज ये नहीं होता, इंजन रूम मैन रहता है, बट नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, वो सिंगापुर स्ट्रेट गाइडलाइंस भी बोलता है दैट वी हैव टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं, नॉट मोर देन 12 नॉट्स. तो 12 नॉट के ऊपर जाना नहीं होता. ये कोई मुझे पूछ रहा है जीआरटी क्या होता है वीएलसीसी के. अरे जीआरटी तो अभी याद नहीं मुझे. So I guess VLCC is related to deadweight. VLCCs में कोई GRT नहीं पूछता. हाँ तो वही. And somebody is asking which Virat from Great Eastern. So I was TNOC 02. TNOC 02. कभी था ये? 2006-2007. At that time the institute was being built actually. तो हमें वो हॉस्टल का भी थोड़ा बाहर रहना पड़ता था, फिर हम लोग आते थे, तो थोड़ा ये था, डिफरेंट था. ओके. अरुण माइंडफुल मरीनर्स. दर्शन का बहुत हुआ रैगिंग. दर्शन का रैगिंग बहुत हुआ है बोलते हैं. दर्शन का रैगिंग एक्चुअली बहुत हुआ है. एक्चुअली मैंने, बट इट वाज इन द राइट स्पिरिट. ओके. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग यार अच्छा कंपनी है यार, पता नहीं क्यों. I have done cadetship from my Great Eastern. Anybody asking me views,
I will of course say it is the best for cadets right now. What I believe because I have been from there, what do you say, as a cadet, मैंने change किया because of certain things that I was not happy with Great Eastern salary wise during that time. But right now Great Eastern is at मतलब proper market के हिसाब स्टैंडर्ड के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, तो ग्रेट उसके ईस्टर्न हिसाब से में मैंने चेंज किया था. ब्रिजेश याद है ना, ब्रिजेश? यस यस. हाँ, वो अभी भी ग्रेट ईस्टर्न में ही है। वो हर हर शिफ्ट के बाद ना मुझे लिटरली लास्ट 4-5 ईयर से बोलता है मैं छोड़ूंगा कंपनी, और अभी आज तक ग्रेट ईस्टर्न में हो। सैलरी बढ़ गई है, मार्केट स्टैंडर्ड्स, मेरे नेट है जहाज पे, नए शिप्स आ गए। मेरे बैचमेट्स है ग्रेट ईस्टर्न के 2007 से, so you can imagine 14-15 years already. Some of them are already masters now. ओके, अरुण, हाउस फ्लीट? गुड क्वेश्चन। ये लाइव में मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो मुझे सू कर देंगे। शोरली वन वीएलसीसी कवर हो गया भाई लोग? कुछ नहीं है शोरली। नो वीएलसीसी शोरली। पे जाना है तो शोरली भूल जाओ, शोरली भूल ही जाओ. ओके, एक क्वेश्चन का, बीइंग फ्रॉम अ केमिकल टैंकर्स में हजार्ड ही हजार्ड है, ठीक है? वीएलसीसीज पे क्या बोल सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फास्टर लोडिंग रेट एंड फास्टर डिस्चार्जिंग रेट एंड H2S पायरोफोरिक ऑक्सीडेशन जो है, उसके अलावा मतलब व्हाट आर द हजार्ड? एक बंदा क्रू डेक पे जो मैनिफोल्ड ओपन क्लोज के लिए रहता है, व्हाट आर द हजार्ड्स? So during that time, अभी normally we मतलब do keep the manifold drain, but during the manifold connection and disconnection, we keep an EBD and SCBA standby, because sometimes it is a SAR crude which has H2S ppm closer to say 200 and TW उसका 25 है, तो we cannot मतलब वो इतना expose नहीं कर सकते, तो we keep a what you say अपना normal EBD SCBA standby वहाँ पे. बट नॉर्मली कोई ऐसे वेयर नहीं करता उस टाइम पे, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कनेक्शन डिसकनेक्शन. एंड ऐसे तो द मेन हजार्ड तो ड्यूरिंग काउ क्या बोलते हैं काउ के वक्त होती है, क्रूड ऑयल वॉशिंग के वक्त होती है, सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हजार्ड एंड एवरीथिंग इट इज ड्यूरिंग द काउ ऑपरेशन. काउ, ओके, नाउ यू हैव कम अक्रॉस काउ, तो काउ के बारे में बता दो, व्हाट इज काउ एंड बेसिक शॉर्ट में, थ्योरी तो मेट्स में है। So cow is basically crude oil washing. We use the same crude oil. What are we discharging? Same grade of crude oil. What are we discharging? And we do a washing of the tanks. Normally bottom wash or side wash, depending on the circumstances. What kind of crude oil we are carrying, depending upon the wax content of the crude oil. And then we clean the tanks and we eject the tanks using the same crude oil. So in crude oil tankers, there is no hot water cleaning and cold water wash as in chemical tankers. But I had experienced before. So मैं आके देखा था, मैं बोला ये सही है, अभी पोर्ट से निकल गए, अभी तो कोई वॉशिंग मशीन कुछ नहीं, सब खत्म खलास. So for the guys who want to know, it is 1/3 of the tanks to be crude oil washed in every quarter, and plus the heavy water ballast tank. So totally it comes to 5 tanks. So in a quarter क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं 1/3 ऑफ द क्रूड ऑयल टैंक्स टू बी क्रूड ऑयल वॉश. एंड टर्मिनल का भी बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्चार्जिंग एट अ टर्मिनल, द मोमेंट वी टेक टाइम फॉर वी स्टॉप डिस्चार्जिंग, वी स्टॉप द सीज द डिस्चार्जिंग फॉर इंटरनल स्ट्रिपिंग, दे गिव अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट फॉर दैट. So minimum crude oil wash is allowed at the terminal, and that too it has to be concurrent. So we have to plan a lot of stages for that beforehand. Stagger करना पड़ता है थोड़ा बहुत. ओके, कितना टैंक्स रहता है बेसिकली? आई एम नॉट आस्किंग द साइज, बट कितना टैंक्स रहता है? Okay, VLCC पे कार्गो टैंक 17 होते हैं, 17. 5 अक्रॉस सेंटर टैंक्स होते हैं, 5 अक्रॉस सेंटर टैंक्स होते हैं और 2 स्लॉप टैंक्स होते हैं. VLCC पे कोई हीटिंग कॉइल्स नहीं होता कहीं भी, ओनली स्लॉप टैंक्स में होता है. गॉट इट, नो हीटिंग कॉइल्स. हीटिंग कॉइल्स केमिकल प्रोडक्ट पे ज्यादा मिलता है, वीएलसीसी पे नो हीटिंग कॉइल्स. गॉट इट. एंड क्रूड ऑयल वॉशिंग अभी जैसे कि डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तो यू आर सेइंग 17 टैंक्स, तो उनमें से कितने टैंक्स का यू डू जनरली एक पोर्ट में क्रूड ऑयल का हो? So normally it is 4 to 5 tanks normally. Heavy weather ballast tank plus 1/3. So 1/3 17 का बनता है 4, तो 5 tanks करना पड़ता है. And that is Okay, the so 5 minimum tanks. allowed by the terminal. And अच्छा, अगर अच्छा, तुम्हारा तो ship dry dock requirement जा रहा है, then you have to take a special permission from the terminal that we have to do a full cow. क्योंकि उसके बाद तुम्हें पानी गर्म करके पानी लेके तुम्हें वॉशिंग भी करनी है हॉट वाटर से, फिर डिकेंटिंग भी करनी है,
So you have to take a special permission. Otherwise, वो quantity of oil in the tank is much more than what is there in the crude oil wash tank. ओके, गॉट इट। तो लास्ट टैंक है एक, जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, जो लास्ट टैंक का अभी मैं वेज ऑयल से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। वेज ऑयल हम लोग क्या करते हैं ना, Okay. लास्ट एक टैंक में बचा के रखते हैं, क्योंकि इनकेस कोई टैंक में जम गया कार्गो ना, तो इस कार्गो टैंक से उसमें ट्रांसफर करके उसको रिसर्कुलेट करके कर देते हैं। तो काउ इज लाइक यू आर टेकिंग कार्गो फ्रॉम एनी वन टैंक सेम ग्रेड, और उसकी वॉशिंग करके पंप आउट कर रहे हैं। लास्ट टैंक को ड्राई डॉक से पहले लास्ट टैंक के लिए फिर एक टैंक में रखना पड़ेगा ना कुछ तो स्टॉक क्रूड ऑयल का। Yes. Dry dock में you are asking कि you are asking during discharge. ड्यूरिंग डिस्चार्ज तो आई बिलीव तेरे पास ऑलरेडी रहेगा ना कहीं से तो वॉशिंग का हो तो कर ही देगा, बट ड्राई During डॉक के लिए। during discharging we have दो टैंक में रखता हूँ मैं, स्लॉप विंग्स में रखता हूँ नॉर्मली। क्योंकि स्लॉप विंग में रखता हूँ क्योंकि नॉर्मली कोई कोई शिप्स पे ड्राई स्लॉप पोर्ट में रहता है और डिस्चार्ज स्लॉप स्टारबोर्ड में रहता है, तो बीच में का डिकंटिंग वॉल इक्वलाइजिंग वॉल खोल के रखना पड़ता है। बट क्या बोलते हैं, इफ वी आर डूइंग से एक ही टैंक से हो रहा है, 1 to 1 है, लाइक स्लॉप पोर्ट टू स्लॉप पोर्ट में ड्राइव एंड डिस्चार्ज सेम नहीं है, देन वी कीप ओके, इन हाँ, ओनली वन टैंक सो दैट वो डिस्चार्जिंग टाइम कम हो जाए। ड्राई डॉक के लिए व्हाट यू सेड इज प्रॉपर कि एक बार डिकैंट हो गया फिर एक टैंक में वो ऑयल बचता है, तो अभी उसका भी वॉशिंग करके उसका ग्रेस फ्री करना है। सो वी हैव हाइड्रेंट्स ऑन डेक, वी हैव कनेक्शंस ऑन डेक स्पेक्टेकल फ्लैंज के साथ, जहाँ पे यू कैन कनेक्ट द फायर होल एंड द प्रेशर फॉर वॉशिंग द टैंक इज 9 बार। तो फायर लाइन देती है नॉर्मली 11 बार तक, 11 to 12 बार। So we use that one and we minimize the time, मतलब 30 मिनट्स का साइकिल रहता है बॉटम वॉश का। एक बार तुमने तेल डिस्चार्ज कर दिया, फिर तुम बॉटम वॉश कर लो उसको एंड फिर तुम गैस फ्री करना चालू करो उसको। सो दैट इज द लास्ट पार्ट ड्यूरिंग द ड्राई डॉक। गॉट इट, गॉट इट। एंड केमिकल टैंकर्स हम लोग यार टैंक्स ना एवरी मंथ वी इंस्पेक्ट द टैंक्स, बिकॉज टैंक क्लीनिंग मॉप ड्राई करना होता है बेसिक, फिर वॉल वॉश में तो 4-5 दिन लग जाते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, मतलब केमिकल अपना वीएलसीसीज में कभी तुम लोग टैंक्स देखते हो? Okay, so the criteria is 30 क्या बोलते हैं 30 ±6 months। तो 36 months हम लोग वो +6 months में ही लेते हैं एंड विद इन 5 years द कार्गो ऑयल टैंक्स हैज टू बी इंस्पेक्टेड ट्वाइस, वो रिक्वायरमेंट है। ओके, विद इन 5 years इट हैज टू बी इंस्पेक्टेड ट्वाइस। तो क्या बोलते हैं, एक बार तो वो क्या बोलते हैं अगर द शिप इज ओल्ड तो क्या बोलते हैं अपना 2.5 ईयरली में वो निकल जाता है, हो जाता है इंस्पेक्शन। बट इफ द शिप इज न्यू देन नॉर्मली क्या बोलते हैं वो सिर्फ इंस्पेक्ट करके नॉर्मली वॉश करके गैस फ्री करके फटाफट उसको, वो दैट इज अ चैलेंज न्यू शिप से, दैट इज अ चैलेंज। सबसे पहले इंस्पेक्ट करना। केमिकल पे तो हर रोज ऑलमोस्ट लाइक लोडिंग डिस्चार्जिंग के बाद एवरी टाइम यू हैव टू गो इनसाइड द टैंक। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। बैलास्ट टैंक्स, बैलास्ट टैंक्स मेरे 50,000 डेडवेट पे लग जाती है। वीएलसीसीज VLCC इज ओके, स्टिल ओके, मतलब वो उसमें रूम है मूव करने के लिए। केमिकल पे ज्यादा मतलब मूव करने के लिए रूम नहीं। आई कैन इजीली स्टैंड बिकॉज फ्रॉम द बॉटम प्लेट टिल द टॉप, ये टॉप प्लेट इट इज ऑलमोस्ट लाइक 3.5 meters, तो काफी ज्यादा स्पेस होती है नीचे बॉटम। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीबी। सो 3.5 meters रहते हैं, तो आई कैन, इफ आई कैन गो, नो एनीबडी कैन गो इनसाइड द टैंक। And we have वही same year almost 4 pick, half pick and 5 wing tanks. That is a standard on any ship I have seen, not more than that. all right, all right. Chalo, then I'll just pick up almost 5 minutes to 1 hour. Random questions, if you can see any, just approximate fuel oil consumption on a per day. Per day, okay, slow steaming, super slow steaming I have seen on a new ship is approximately 25 tons. That is very, very low for a VLCC for a day. And for normal speed 12 knots, I mean that depends on the type of engine. Actually ME है कि normal engine है, तो वो normally आता है around the range of 38 to 40। हमारा ज्यादा नहीं होता। अगर full speed में भगा है 16 knot पे तो वो क्या बोलते हैं, okay, VLCCs also do go to 16 knots, 16.5 I have seen on board. Okay, ऐसा नहीं है कि VLCC मत जाओ। नहीं ऐसा नहीं है कि VLCC स्लो स्टीमिंग ही करते हैं। VLCC डू, अगर कोई जगह पे लोड करना है जल्दी तो आई हैव सीन माय शिप गोइंग एट 16.5 knots, 16.5 knot, तो वो कंजम्पशन भी 90 टन तक पहुंच जाता है। all right, so we covered that. कैप्टन रवि पूछ रहे ही हैड कम इन बिटवीन मेरा और उनका
कल का परसों का कल का एक प्लानिंग हो रहा है. Okay. नेक्स्ट, हाउ मच ड्राफ्ट रिक्वायर्ड हाउ मच ड्राफ्ट रिक्वायर्ड फॉर पोर्ट टू Draft अकोमोडेट VLCCs. that depends यार. See the ballast draft करके क्या फायदा है ना मतलब. So okay, the most difficult port for loading in VLCC I can say is Basra because it has a draft restriction of 20 meters. Okay, for a VLCC वहाँ पे सैंड बार है and you have to go on a particular tide for loading. I have seen. बाकी कोई लोड पोर्ट में जुआमा में मैंने लोड किया था लास्ट, तो वहाँ पे तो 50 मीटर तक पानी है, तो there is no draft restriction. And yes, of course, मेरे को ये भी बताना था कि okay, during crude oil washing, normally the trim of the ship is 7.5 meters. 7.5 meter. Yes, it is in our crude oil washing manual. So it is quite a lot, I know. But वो बताया गया है कि बट वो 7-7.5 मीटर मार्कोल trim. में 1.5% ऑफ द शिप स्ट्रीम वाला क्या फंडा है फिर वो? No, वो that is during arrival port. Arrival port के not more than 15 तो फोर वो 60 crude ना, oil 6 मीटर्स तक अगर या क्रूड ऑयल वॉशिंग के लिए एक्सेप्शन है फिर? एक्सेप्शन है, कोई शिप पे एक्सेप्शन है. जो लास्ट शिप था उसका 7 मीटर था, तो मैं भी देख के Okay. एकदम चौंक गया था कि 7 मीटर मतलब, बट हो जाता है मतलब, ऑफ कोर्स दैट इज अ okay. नॉर्मल थिंग. Alright. रोलिंग एंड मैंने भी पिचिंग ऑन किया है. VLCC. यप, रोलिंग एंड पिचिंग हिलता ही नहीं है भाई. भाई हिलता नहीं है जज, एकदम स्टेडी एज अ रॉक रहता है. बैलेस्ट में थोड़ा बहुत हिल जाएगा, बट लोडेड में आई कैन शेयर सम वीडियोस आई हैव. पानी इधर से उधर जाता है, बट जहाज हिलता नहीं है इतना एज कम्पेयर टू स्मॉलर टैंकर. दैट इज एन एडवांटेज ऑफ अ VLCC ऑफ कोर्स. मुझे भी व्हेन आई वाज 24 मंथ्स मेट ना, तो मुझे भी ऑफर आया था एक VLCC में. फिर मैंने पंप रूम एक्सपीरियंस था नहीं एंड आई वाज मोर इनटू केमिकल टैंकर्स, तो फिर मैंने Okay, pump डिक्लाइन कर room. दिया. Okay, for the guys, pump room. Abhi, of course, Captain Vijay has brought this topic out. Pump room, okay, that is Framos पे normally नहीं होता. We have deck exchangers और सब कुछ heat exchanger और सब कुछ deck पे होता है. VLCCs and conventional tankers पे we have a pump room. Okay, हमारा तो I think 30 meters down था, 30 मीटर डाउन जाने का रहता है पंप रूम में. और कैडेट की तो मतलब वाट लग जाती है ऊपर नीचे करके, बिकॉज कोई शिप्स पे इट इज मैनुअल वॉल्स एंड देन वी हैव टू गो डाउन अगेन एंड अगेन. तो आई कैन अंडरस्टैंड कैरेट की थोड़ी प्रॉपर. आई थिंक उसके बाद मैं प्रॉपर ऑफ कोर्स रेस्ट भी देता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है. somebody is asking me, sir, in which all area VLCC sail as CBD? Okay, that depends on the draft of the vessel. ऐसे specific नहीं है, but Singapore, yes, सिंगापुर में normally 15 meters or more and 1,50,000 deadweight and above is क्या बोलते हैं, qualified for entering into the deep water channel. So 15 meters and more and 1,50,000 deadweight and above. So Suezmax also qualifies for that. And Okay. हरसिमरन, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं, what else यार? Okay. तेरा एडवाइस, लाइक अभी यू सून बी गेटिंग कमांड, तो न्यू कैडेट्स पासिंग आउट फ्रॉम BSc नॉटिकल और DNS एंड दे आर जॉइनिंग VLCCs, तो उनको क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जब, तो सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड? Okay, I have seen cadets. Okay, my last cadet was from TS Rahman. He was very good actually. And okay, मेरे को नहीं मालूम था you were from TS Rahman. Before that, cadet was from Ahmed. Goodwood is recruiting from all the colleges, I guess, but only small ये क्या बोलते हैं, we small group of people. My only advice for cadets on board is you have not come on board for completing your sea time. You have come on board to learn. वो sea time Goodwood ने क्यों बढ़ाया हुआ है? क्योंकि people were saying मुझे वो बोलना था कि Goodwood ने sea time बढ़ाया हुआ है कि 12 months होने के बाद भी they are doing के requirement 12 months है, but they are opting for 18 months. Why? Because the ships are bigger and you need that experience. Okay, एक बार experience आ जाएगा फिर तुम कहीं भी जा सकते हो. VLCC पे you can always switch to a smaller tanker, but not on chemical of course. Smaller tanker you can of course switch, but तुम्हें वो एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो बेटर रहता है. DNS वालों का भी यही था कि 18 महीना है हमारा सी टाइम, 27 करना है हमको, तो वो थोड़े बोलते हैं ना ऑन बोर्ड. तो मैं बोलता हूँ कि इट इज कंपनी ने कुछ सोच के बोला है कि
क्या बोलता है, ऐसे ही नहीं बोला कि हम उनके पर वो खाली फुकट क्यों पैसा देंगे ना तुम्हें, नेक्स्ट 12 मंथ का या क्यों पैसा देंगे। सो कुछ तो सोच के बोला है कि हमने तुम्हें क्यों बोला हुआ है इतना करने के लिए। So my advice is on board you have come to learn and this is the best time you can ask questions. तुम किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, nobody is going to judge you. मैं अपने कैडेट्स को ऐसे ये नहीं बोलता, तुम कुछ भी पूछ लो कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तुम पूछो। बट अगर मैंने कुछ पूछा तुम्हें, तुम मुझे वापस बताओ नेक्स्ट दिन या फिर 2-3 दिन में वापस बताओ। जो कैडेट मुझे बताता नहीं है, फिर मेरा इंटरेस्ट चला जाता है उसको सिखाने का। लाइक यू सेड दैट डे, I heard this statement what you said, no, because you also be doing the same thing, no. If you ask a question and सामने वाला respond नहीं कर रहा, okay, immediately you don't know the answer, but if the सामने वाला respond नहीं कर रहा, तो what we can say, like क्या बोल सकते हैं उसको? Only thing is be true to yourself and learn on board. That is, nobody is there to rag you. Okay, अभी वो phase चला गया कि people are ragging you on board, क्योंकि सब लोग को अपनी rank और अपनी job प्यारी है। The moment you call anyone, it is all gonna come on the master and all gonna come on the mate, क्योंकि तुम जहाज पे मेट हो, तुम उसके इंचार्ज हो, और मास्टर है तुम क्या कर रहे थे, you know that. So the only thing is be truthful and learn whatever you can. People are asking कि सी टाइम कब कंप्लीट होगा, तो सी टाइम कब कंप्लीट होगा? जब तुम 3 जहाज कर लो कि सी टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एक बंदा है मिस्टर ऑफिसर 8, नाम तो नहीं मेंशन्ड है, बट वो बोल रहा है कि यू आर हिज अशरफ चीफ मेरा ऑफिसर। कैडेट। अशरफ है, ओके ओके, he was my cadet on board. ग्रेट। इंटरनेट है गुडवुड में? इंटरनेट है तो कैसा है, डेटा फ्री Okay, है, कम है? Goodwood का we have 2 hours of internet every day for everyone. तो 2 hours है, तुम कुछ भी करो उसका, कुछ भी यूज करो, and it is free. नो लिमिट? No limit मतलब डाउनलोड बिल, I think so it is 1.8 GB for a week or something like that, if I'm correct. Okay. I really don't know the, उतना नहीं जाता नॉर्मली, उसके पहले खत्म हो जाता है, बट वीडियो But, कॉल एंड सब कुछ 2 hours आराम से। तो अभी तेरा गर्लफ्रेंड था तो तूने कैडेट को पूछा रहेगा ना कि तेरा गर्लफ्रेंड है, बोलता नहीं है, अच्छा ठीक है, तो तेरा 2 घंटा मेरा। नहीं ऐसे नहीं, अभी वो सब बंद हो गया, गर्लफ्रेंड अभी नहीं है, बीवी बाजी में। अरे नहीं, अभी भी तू जाएगा शिप पे तो कैडेट को ही पूछेगा ना कि कैडेट तेरा गर्लफ्रेंड है, बोलता नहीं सर नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, उसका 2 घंटा तू यूज कर सकता है ना फिर। नहीं ये तो सब अभी कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि कैप्टन का स्ट्रिक्ट वार्निंग है। और वो कोई अभी क्या है ना, हमारी कंपनी में अगर सेम आईपी एड्रेस से, फोन के आईपी एड्रेस से लॉग इन किया सेकंड अकाउंट, तो एक्टिवेट ही नहीं होता वो। एंड गुडवुड का ओके ये थोड़ा एडवांस थोड़ा हो गया है उनका। ओके, क्या होता ना, मेरे कंपनी में भी बीच में 2 घंटे का रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था, तो काफी बेचारे जो क्रू थे ना, चीफ ऑफिसर उनका ले लेता था, उनका डेटा आईडी यूज कर लेता था अपना बात करने के लिए। हमारे कंपनी में इंटरनेट इज ओनली अलाउड इन द स्मोक रूम, नॉट इन द कैबिन। कैबिन में नहीं अलाउ यूज कर सकते, ओनली इन द स्मोक रूम। नो। ओके, अनदर डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, नीचे आके सब अपना अपने गर्लफ्रेंड बीवी से बात करे, क्या प्राइवेसी नहीं, बट क्या हाँ वो तो है, बट क्या बोलते हैं क्या बोलते, पकड़ लिया, कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं, एलिवे में खड़ा रह के कोई बात करता है, कोई थोड़ा बाहर जाके बात करता है, बट ओनली एंड नॉट ये ऊपर इंटरनेट कहीं नहीं है, बिकॉज दे बिलीव के तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए। अगर कैबिन में इंटरनेट दिया तो फिर क्या बोलते हैं, तुम्हारा रेस्ट अगर वो सब वायलेट हो जाता है, तो लंबा सेलिंग है कंपनी। उसमें लंबा सेलिंग में भी पब्लिक बहुत कुछ करती है यार, यू डोंट नो। एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट टोटली जीरो अल्कोहल शिप्स, तो हमारे शिप्स पे बियर अलाउड है। So Goodwood, and I think one of my very good captain has joined. One of my very good sailing captains from Goodwood has joined Suntech, Captain Harbinder Gill, and he is sailing on some Aframax, Navigate JKB Prestige, I think. Yeah, P series, yeah. So he is sailing on that. So he is on board for a very CPP है, petroleum products, CPP है, crude oil नहीं, petroleum, clean product या क्लीन प्रोडक्ट्स है, लेकिन
वो उन्होंने बोला था, उन्होंने क्या बोलते हैं, रशिया से लोड किया था, नोरोसिस से। मे बी। सो क्रूड ऑयल था बेसिकली, हम लोग के साथ ही एसटीएस करने वाले थे। एंड हाँ, फॉर एवरीवन, नॉर्मली हम लोग पोर्ट में नहीं जाते, ठीक है, सिर्फ एसटीएस ही एसटीएस चलता है, एसटीएस। तो सिर्फ जाएंगे पोर्ट में तो चाइना में जाएंगे या फिर एसपीएम पे जाएंगे और एसटीएस करेंगे। तो साइन ऑन ओके साइन ऑफ बोट में ही होगा। ओके। सो साइन ऑन साइन ऑफ बोट में शो लीव नहीं है बिल्कुल। हमने कार्गो ऑपरेशंस का डिस्कस कर लिया, ह्यूज शिप को नेविगेट करने का डिस्कस कर लिया, गुडवुड पूरा एक्सप्लेन कर दिया भाई ने, सैलरी बता दी, इतने सारे रैंक्स बता दिए, और प्रमोशन सबको ही पूछ रहे नेट। कौन सी फ्री, कोई कौन सी कंपनी फ्री में बियर ऑफर करती है सबको। हाँ बस भाई, फ्री नाउ में तो बियर तो नहीं फ्लोर मिलती। इज फ्लोर अभी ऑल योर्स टू जो भी क्वेश्चन आंसर्स करना है, तो आई एम डन विथ माय साइड। अभी तो इट्स टू लेट फॉर मी टू कम ऑन अ वीएलसीसी। But it is what do you say? Now what I've told you, recently we discussed over the phone also that now command हम लोग को आपको बताया था मैंने कि बल्क कैरियर्स पे, केप साइज पे सब मिल रहे हैं। एंड somebody is asking कि कौन सी बियर फ्री में मिलती है। भाई फ्री में कोई बियर नहीं मिलती, you have to pay for it, ठीक है। और कैडेट्स को तो बिल्कुल नहीं मिलती, इट इज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी। कैडेट्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक एंड ड्रिंक ऑन बोर्ड, सो सॉरी, नॉट अलाउड। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वरना मेरे से मेरे मेरे इस पे ज्वाइन करेंगे और फिर मेरे को बोलेंगे सर आपने बोला था। गुडवुड के अलावा कौन से शिप्स है? आई थिंक यू कवर्ड दैट वीएलसीसी के ऑलरेडी। अलावा एफ्रामैक्स है, सुएज मैक्स है, गैस टैंकर्स है, बल्क कैरियर्स है, अभी फिलहाल केप साइज बल्क कैरियर्स है। कंटेनर्स है, दैट इज मोस्टली बाय फिलिपिनोस। बट आज सरप्राइजिंगली मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। ओह दैट्स गुड यार, एटलीस्ट मेजर टॉपिक अपना कवर हो गया अभी। आई थिंक मोरलेस तो मेरी साइड से तो जो इतना मेरा एक्साइटमेंट था वो कवर हो गया। ये व्हाट लड़का हैपेंस लगता व्हेन है यू बहुत पास द सदमे में, इक्वेटर? हाँ सदमे में है ये बेचारा। तो मैं बताता हूँ भाई, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन इट इज ओके। इफ यू हैव अ गुड मास्टर एंड अ मेट, ऑफ कोर्स योर नीड, योर प्ली वुड बी हर्ड। बट आगे आगे क्या होता है मैं सिर्फ पिक्चर में बता सकता हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता कुछ। ओके, गुडवुड में फीमेल सीफेयरर्स है? Yes, I have sailed with one third officer. 2, 3 third officers are there in Goodwood, and I have sailed with them. And I have also done some courses with them. अपना induction courses होते हैं, उसमें उन लोग आए थे तो introduce कराया गया था। So we have ओह दैट्स ग्रेट। female cadets and female officers on board. Yes, we do have. ओके, सो गुडवुड टेक्स कैडेट्स आल्सो, गर्ल कैडेट्स। Yes, पहले अच्छा था, we had 2 cadets, but अभी वो change हो गया, अभी एक ही cadet है, तो it is still good हमारे पास though. कैडेट नहीं है, हमारे पास कैडेट मैं पहले से मालूम है, नहीं मैं था। तुम्हें I heard that in Suntech की cadets नहीं है। Yes, it is an added disadvantage. Of course, cadet रहते हैं तो थोड़ा बहुत you get help here, of course. नहीं हमारे पास Which होते हैं batch ना from वो grade? सीओसी वाले होते हैं, सीओसी वाले कैडेट्स। हमारे वो सीओसी वाले कैडेट को जूनियर ऑफिसर बना दिया है बिकॉज दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू राइटली टोल्ड यस्टरडे। इसलिए जूनियर ऑफिसर बनाया कि तुम एलएसए करो या एफएफए करो, इफ यू डू एनी वन ऑफ देम इट इज ओके। एंड उनका है कि मेट के साथ वॉच भी रखो, मतलब मेट रहेगा। अभी ब्रिज पे कौन कौन रहता है सुबह, मतलब शाम को मेट रहेगा, फोर्थ ऑफिसर रहेगा, कैडेट रहेगा, सुखानी रहेगा, तो 4 जन रहते हैं ब्रिज पे। मैं बोल रहा हूँ डे लाइट में 4 जन क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड। नेक्स्ट फिलिपिनो क्रू, इंडियन क्रू। ओके, गुडवुड के न्यू शिप्स पे, ब्रांड न्यू वीएलसीसी पे वी हैव इंडियन क्रू, इंडियन चीफ को, एंड व्हाट यू से अदर, व्हाट यू से द ओल्डर शिप्स वी हैव फिलिपिनो क्रू व्हिच आई वुड प्रेफर टू सेल विद, ऑफ कोर्स। Anybody, you Okay. given an option, Vijay, who do you sail with? Yeah, Given an option, Filipino or Indian? I've sailed with Filipinos, I've sailed with Indians, but I'm दिल से हिंदुस्तानी, so I would जैसा भी Indian standards you can say कम है, but I would always support them and make them कि you know at a good
standards की बॉस इंडियन क्रू का भी एक अच्छा लेवल है and we want to sail with them. So I always support Indian crew. हमारे कंपनी ने ऑलरेडी दे स्टार्टेड एम्प्लॉइंग इंडियंस ऑन न्यू शिप्स टू चेक द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. तो हम जब जाते हैं, मतलब मैंने तो अभी लास्ट 3-4 कॉन्ट्रैक्ट तो पुराने वीएलसीसी पे किया है. तो एंड इट इज अ बेटर, लाइक नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल. तो नए जहाज पे जाते तो पता नहीं क्या उसमें BWTS रहता है, नया कुछ अलग ही रहता है. एंड पुराने वाले पे अभी मोस्ट ऑफ द शिप्स हमारे जो पुराने हैं उसमें BWTS नहीं है अभी भी. So normal ballast exchange चलता है. It is a normal life. But you know what are the hassles with the BWTS system? So much, what you say, you need to have a extra officer sitting on the system during the loading and discharging operation rather than concentrating on the cargo. Okay. Jwala Singh, I would disagree. Both are not more or less the same. बुरा लगेगा बट फिलिपिनोज का वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग प्रोफाइल, दर्शन इफ यू वुड सपोर्ट मी, एकदम अलग ही लेवल पे. इनको अगर एक काम बोल दो, उनको वापस नेक्स्ट टाइम वही केमिकल टैंकर्स में बोल रहा हूँ, अगर उनको एक काम बोल दिया ना, उनको पता है कि ऐसा टैंक क्लीनिंग का ऐसा स्टेप्स है, एक बार दिखा दो, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक मोड में रहेगा. इफ लाइक फॉर एग्जांपल पीवी का मुझे फ्लशिंग करना था, तो आई विल बी लाइक ओके गाइस डू द पीवी फ्लशिंग. वो बोलेगा ऑलरेडी कंप्लीटेड सर. इंडियंस में क्या है ना कि बोलना पड़ता है कि पीवी का फ्लशिंग किया, बोलता नहीं सर वो आपने बोला ही नहीं. आपने बोला नहीं. अरे लास्ट टाइम तो किया था ना, सेम चीज तो रिपीट करने का बोलता, आप बोलो फिर. तो वो एक डिफरेंस है. बट एडवांटेज है कि उन लोग 8 से लेकर 5 बजे तक काम करेंगे हिसाब से, लेकिन सब काम कर देंगे. इंडियंस में यार वो रहता है अपना, उनको रिक्वेस्ट करो यार, खाने के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करने का. 12 से 1 और शाम को 6 बजे उनको डिस्टर्ब नहीं करना. उसके बाद तुम काम करा लो चलेगा, बट खाने का डिस्टर्ब नहीं करना. इंडियंस में खाना खाने को पीसफुल टी टाइम रहेगा, वो अपना एक्स्ट्रा काम करेगा, बाद में भले उसको छोड़ दो लंच के लिए, डिनर के लिए, बट टाइम टू टाइम. फिलिपिनो उस टाइम मतलब टू स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, टैंक क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉल वॉश कर रहे हैं, वो बोला दिस इज माई टी टाइम, आई गो. दैट इज उनका ही रहता है. बट अभी दे हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड ऑन दैट ऑल्सो, कि वो पूछ के जाते हैं तो कि चीफ आई एम गोइंग एंड दिस गाय इज देयर करके. Somebody is asking in last 4 months how many times you get in near port. Near port I got thrice, but not into the port. Near port हम जाते हैं, but not into the port. Sorry. All right, then Darshan, questions will keep coming. ठीक है. So guys, VLCC expert, and next time we are planning Darshan and one more senior captain. VLCC sailed for 35 years. So again, he is also a company training officer for cadets. So he will explain कि cadets का क्या उनका requirement है for any company में. So yes, sure. उसके लिए thank you Darshan for coming live first time. Net थोड़ा ऊपर नीचे, but I believe more or less we covered many things. Not all questions हमने cover किया guys, so I'm sorry for that. So thank you so much for coming, and thank you all my viewers. ये video will be available on the Instagram, ठीक है, I'll tag you, and also on the YouTube पे मैं लिंक भेज देगा, तो अपने सब cadets जो भी आएंगे ना उनको ये video forward कर देना. Sure. So, and thank you Vijay, of course, for inviting me on this platform of yours. Really wonderful what do you say thing you are doing for making the seafarers aware of what is the trades in the industry right now, current trades, because people are following the old trades and they are not aware of it. Really a wonderful thing you are doing, and of course I will live all your live sessions every time. And of course I'll tell all my batchmates and everyone to support you in all the ways possible. Thank you so much. सब कैडेट्स का अप्रेजल, कैडेट्स का जूनियर्स और एबी लोग का क्रू का अप्रेजल बनाने से पहले ना उनको मोबाइल में चेक कर लेना फॉलो किया कि नहीं किया, उसके बाद ही अच्छा ग्रेडिंग देना, ठीक है? श्योर. हमारे आए थे ना, देखा ना 2-3 कैडेट्स आए थे हमारे. कैडेट्स हमारे जहाज के बैठ के आए थे वो. कोई नहीं, मजाक कर रहे हैं. नेकी कर और दरिया में डाले ना, सेम फंडा. It is a very good initiative what you have started actually. And Pilot Ladder, I have to ask you a question that I'll ask you on your DM. What you have uploaded the shackles wala thing, I'll ask you a DM on that because I have some doubts on that. क्योंकि VLCCs में ना इतना huge freeboard में चढ़ना पड़ता है. मैं यही बोलने वाला था कि we normally don't use pilot ladders.
कॉम्बिनेशन ही होता है, 9 मीटर का रिक्वायरमेंट है, हमारा फ्री बोर्ड 11 मीटर रहता है हमेशा, तो चांस बट ही यू नहीं। यूज कॉम्बिनेशन ना, बट फिर कॉम्बिनेशन ऊपर में तो लैडर बसता ही नहीं रहेगा फिर, यू सेइंग। नो वी हैव टू टाई द लैडर। अभी हमारा कैसा है, आई विल शेयर द पिक आई थिंक विथ यू। लेट्स नॉट डिस्कस द पैरेलल लैडर यहाँ पे, बिकॉज इन यस वीएलसीसी यस, विल बी यहाँ पे मिक्स्ड अप। ओके, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। या ओके ओके, डिफरेंट टॉपिक, सॉरी गाइस, सॉरी। VLCC सॉरी focus. आई विल डीएम यू ऑन दैट। Sure. All right, and we will have more sessions. Will involve engineers too. So thank you guys. Thank you for coming, and take care. थैंक यू, Alvida. Goodbye. Thank बाय, you, Darshan. Bye bye. गुड नाइट कैप्टन विजय, बाय। Good night. Good night. And follow Darshan. He's new on Instagram. He will be sharing lots of VLCC's videos. एक मुझे भेजा है, and I'll be uploading it after this live. So Darshan, you can share all your VLCC's का videos. I will definitely share on my श्योर story. Sure. I have a Because transit video of Singapore also. I have a transit wow, video of Singapore also. So wow, full video time lapse. So I have kept that with superb. me. And also VLCC birthing and unbirthing also I have a video. So I will share with you. You can upload it on the channel. Great. Sure, definitely. Sure. Chalo then, thank you. Bye Chalo, bye. good night. Good night guys. Thank you. Good Bye. night. Bye bye.